Hello class 11. So as you know that we have completed till chapter 5 in our last lecture. Now we are starting our new chapter, that is chapter 6. Before starting this chapter, I just want you to give some guidelines regarding COVID-19. Please wear your mask regularly whenever you are going out from your house. Please maintain social distancing and wash your hands as much as possible. Again and again, please wash your hand. If washing is not available, washing is not possible, please use sanitizer and maintain distance, 6 feet distance minimum. Okay, because whenever you will keep yourself safe, then other will also safe. Okay, so now we are starting our chapter 6, that is production function, and you can say returns to a factor. Okay, before this we have done elasticity of demand, price elasticity of demand. We have done so many numericals based on the chapter. Okay, but after completing this, I will again revise you that numericals. Okay, because price elasticity of demand is very important chapter. Okay, so now we are starting production function and returns to a factor. What is production function? What is the concept of it? First we have to study about it. Then we will study about concept of total product, marginal product, average product, returns to a factor, that is also known as law of diminishing returns or law of variable proportion. What is the relation between TP, AP, MP? We all study about these topics in this lecture. Sorry, in this chapter. Okay. So first heading is concept of production function. As you know that production, if we want to do production, if we want to do production of goods, so what I have to do? I have to do, but first I have to irrigate land, then all process of agriculture will be done, production will be done. Okay, so you can say for output you always need input. You cannot get output whenever till you have not input anything. Okay, as a computer, when we are inputting something, then we will get output, that is result. But if we will not input, then output cannot be get. ओके, तो जब तक हम लोग कुछ इनपुट नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा. जब हम इनपुट कुछ करेंगे तभी हमें आउटपुट मिलेगा. जब हम लोग मेहनत करेंगे तभी हमें अपना रिजल्ट अच्छा मिलेगा. स्टडीज़ अच्छे से करेंगे तभी रिजल्ट आएगा. आप पढ़ाई नहीं करें, कुछ नहीं करो, 100% अटेंडेंस आ जाएगी आपकी, या आपकी रिजल्ट आ जाएगा 100%? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो आउटपुट नीड्स इनपुट. like land, labor, capital are the common inputs for the production of goods and services. अगर हमें गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए जो मेरे मेन इनपुट्स होंगे वो होंगे, एक तो लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए जो काम करेगी, और कैपिटल चाहिए. कैपिटल डज नॉट ओनली इंक्लूड मनी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मशीनरी, बिल्डिंग, okay, plant and machinery, that is also comes under the capital. So these are the common inputs for the production of goods and services. Suppose as a producer you would always be interested to know how much labor and capital and other inputs you can say are required to produce a given quantity of commodity. अगर आपको given quantity of commodity को produce करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी लैंड चाहिए, कितनी लेबर चाहिए और कितना के कैपिटल चाहिए. ठीक है, यू मे फाइंड फॉर एग्जांपल अगर आपको 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल और 5 यूनिट्स ऑफ लेबर चाहिए, आपको 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बनानी है, उसके लिए आपको 10 यूनिट्स का तो कैपिटल चाहिए और 5 यूनिट्स की लेबर चाहिए. सो इट इज़ दिस रिलेशनशिप कि फिजिकल इनपुट जो 10 यूनिट्स कैपिटल है और 5 यूनिट्स लेबर है, उसका फिजिकल आउटपुट जो हमारा 100 यूनिट्स का था उसके साथ में जो रिलेशनशिप होती है, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. सो इन द similar manner, or you can say in the easy manner, you can say production function is the functional relationship between physical input and physical output of the commodity. Okay, so it is shown here as Qx is equal to FLK. Qx means production of commodity X, L means labor, K means capital, F means functional relationship, because labor and capital they both are functional relationship with the production of commodity. ओके, सो एग्जांपल अगर मैं आपको कह रही हूँ 40 कमोडिटी X की है मेरे पास, 5 लेबर है, 4 कैपिटल है,
तो मेरी इसको मैं ऐसे शो करूँगी, तो यहाँ पे 40 यूनिट्स है कमोडिटी एक्स को कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है जी नेक्स्ट, देखो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फिक्स और दूसरे होते हैं वेरिएबल। जब भी हम प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमारी फिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं। सो यू कैन सी दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैटेगराइज्ड एज फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। सो व्हाट आर फिक्स फैक्टर्स एंड व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स, आई विल टेल यू नाउ। फिक्स फैक्टर्स, these are those the application of which does not change with the change in output. Whatever the output, the application of input does not change. ठीक है, इसका मतलब फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं चाहे हमारा आउटपुट कुछ भी हो, लेकिन हमारे फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते। फिक्स फैक्टर्स जैसे मशीन्स हमने इंस्टॉल करनी है, बिफोर देखते हैं, अगर सपोज मुझे अपना फैक्ट्री चलानी है तो मुझे उसके लिए पहले मशीन्स वगैरह रखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मुझे जब आउटपुट मिल रहा है कुछ तब जाके मैं मशीन लगा रही हूँ। चाहे मेरा आउटपुट 0 है, लेकिन मुझे मशीन तो पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना अपनी, तभी तो मेरा काम इस प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, सो लाइक मशीन्स आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली कमेंस, मतलब स्टार्ट होने से पहले मुझे अपनी मशीन्स वगैरह वहाँ पे रखनी पड़ेंगी। दस अ मशीन इज़ देयर इवन व्हेन आउटपुट इज़ 0। मशीन वहाँ तभी भी रहेगी चाहे हमें आउटपुट मिल रहा हो ना मिल रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि हमें आउटपुट कुछ नहीं मिला, 0 मिला है तो हमने मशीन तोड़ ताड़ के फेंक दी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू कीप योर मशीन्स देयर whenever till the output is 0. Okay, so let us assume that machine can produce maximum 1000 units of commodity. मैं कह रही हूँ एक मशीन है वो सिर्फ 1000 यूनिट्स कमोडिटी की बना सकती है मैक्सिमम। तो इट मीन्स जो कि चेंज हो रहा है आउटपुट में, वो रेंज 0 से 1000 तक अगर है तो हमारा इनपुट जो मशीन का फिक्स फैक्टर का है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर हम ज़्यादा, सपोज मैं कह रही हूँ एक मशीन सिर्फ 1000 तक ही यूनिट्स बना सकती है, तो अगर मुझे 1000 तक यूनिट्स बनानी है या 999 भी बनानी है, 999 भी बनानी है, तो भी मैं उस मशीन को यूज़ करके बना सकती हूँ, क्योंकि जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है वो 1000 की है। लेकिन अगर मुझे 1000 से ज़्यादा बनानी है, लेकिन जो मेरी मशीन है वो सिर्फ 1000 तक बना सकती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरी मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सो टू एलैबोरेट फर्दर, वंस अ प्लांट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए मैंने एक प्लांट को इंस्टॉल किया। प्लांट पौधे की बात नहीं हो रही है, ठीक है, प्लांट एक मशीनरी वगैरह की बात हो रही है कि मैंने प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मैंने प्लांट इंस्टॉल किया। इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। अगर मैं सपोज शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड 2 तरीके के टाइम होते हैं। शॉर्ट पीरियड में मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं वेरिएबल फैक्टर्स बता रही हूँ ना आपको, तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है, चेंज होता रहता है जैसे जैसे हमारा आउटपुट चेंज होता है। आउटपुट बढ़ रहा है तो हमें अपना वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। सो लेबर एक एग्जाम्पल है वेरिएबल फैक्टर का। देखो, आपको अगर प्रोड्यूस ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बनानी है तो लेबर क्या है, ऐसा तो नहीं है मैंने फिक्स कर दिया 2 तो मैं 2 को ही से हम काम कराऊंगी, चाहे मुझे कितना ही काम करना पड़े। अगर सपोज मैं आपको कह रही हूँ एक दिन में मुझे 50 जो पेपर पैकेट्स होते हैं ना वो बना के देने हैं, तो मैंने 2 लोगों को लगा रखा कि भाई मेरे को 50 पैकेट्स बनाने एक दिन में। अब कल को ऑर्डर आता है कि हमें 50 नहीं 80 चाहिए, तो मुझे 80 वहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो 80 के लिए मुझे एक दिन में 80 बना के देने हैं, तो मैंने सोचा अरे 2 लोग तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके मैंने एक और को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब मैंने 80 दे दी। अब सपोज इंक्रीज़ हो रहे हैं फिर से डिमांड की, भाई ऑर्डर आ गया ज़्यादा का, तो मुझे ज़्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। अगर डिमांड कम हो रही है तो मैं क्या करूँगी, लेबर कहूँगी भाई इतने लोगों को जब वही काम एक बंदा कर सकता है तो मैं इतने सारे लोगों से काम क्यों कराऊँ। तो मैंने क्या कर दिया, सबको हटा दिया और एक से काम करा रही हूँ। अगर सपोज मैं कह रही हूँ 10 और 20 पैकेट्स देना, तो एक ही कर सकता है वो पर्सन। ठीक है ना, तो हम जो लेबर होता है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि हमें आउटपुट कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो लेबर होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल फैक्टर। द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज 0 व्हेन आउटपुट इज 0, इट इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो भी 0 होता है जब तक हमारा आउटपुट 0 है।
देखो इसमें क्या होता है, मैंने मशीन तो लगा दी, मशीन तो फिक्स थी भाई, वो तो मुझे चाहिए ही है जब तक मेरा, अब ऐसा थोड़ा, अब जैसे सपोज अगर मुझे प्रोडक्शन चाहिए तो आउटपुट चाहिए, आउटपुट अगर ज़ीरो है तो मेरा वेरिएबल फैक्टर्स भी ज़ीरो ही रहेगा। जब मुझे कोई काम ही नहीं हो रहा है तो मैं लेबर लगा के रखूँगी वहाँ पे? नहीं रखूँगी। जब मेरा कुछ काम होगा तभी तो मैं लेबर को लगाऊंगी, ठीक है, लेबर का यूज़ करूँगी। तो यही डिफरेंस होता है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन के लिए। जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। फिक्स जो कि फिक्स रहते हैं, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, बट वेरिएबल फैक्टर्स चेंजेस विद द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट, it does not remain constant. Is it clear? Now प्रोडक्शन फंक्शन हम पढ़ रहे थे। प्रोडक्शन फंक्शन जो मैंने बताया फंक्शनल रिलेशनशिप होती है फिजिकल इनपुट में और फिजिकल आउटपुट में। तो फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है हमारा टू टाइप्स का होता है, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। आई शो यू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन में क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके अपने जो हमारा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिक्स फैक्टर आपको पता है कि कांस्टेंट रहते हैं, तो शॉर्ट पीरियड बहुत छोटा टाइम होता है उसमें हम फिक्स फैक्टर को बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिक्स फैक्टर अगर मैंने मशीन लगा दी और सपोज 6 महीने के लिए मेरा काम चल रहा है, मैंने मशीन लगा दी, फिर उसको मैं चेंज कर रही हूँ, फिर दूसरी लगा रही हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल अंडर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द मोर टाइम, यू हैव मोर टाइम टू चेंज फिक्स फैक्टर्स ऑल्सो, ओके। सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस, मतलब गायब हो जाता है। आपको फिक्स फैक्टर को बढ़ाना है तो फिक्स फैक्टर बढ़ा सकते हो, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, घटाना है घटा सकते हो, जो करना है रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज यू कैन डू, ओके, विद इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग पीरियड जो होता है लॉन्ग होता है, इनफ होता है कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को फॉर्म की बढ़ा सकते हैं, प्लांट साइज बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। दस व्हाट इज फिक्स फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स अ वेरिएबल फैक्टर। जो भी फिक्स फैक्टर होता है उसको भी हम वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं क्योंकि हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बट अंडर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज, फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, दे रिमेन्स कांस्टेंट। जो फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज शॉर्ट रन इज द वेरी लेस टाइम, यू कैन नॉट चेंज fixed factor again and again, okay, but in the long run you can do. So this is the difference between short run and long run production function, okay class. So प्रोडक्शन फंक्शन जो हमारा होता है, जैसे सपोज अगर मैं आपको कह रही हूँ कि वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट रन वाला जो बहुत छोटा है, सपोज अगर मैं कह रही हूँ 6 मंथ का है या 1 ईयर का है, और जो लॉन्ग रन होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, 2 ईयर्स होता है, 3 ईयर्स होता है, यू कैन से। So this is the main difference between short run production function, long run production function. After this we will study about next topic, that is TP, MP, AP, and because some numericals will also be there for TP, AP, MP, average product, marginal product, total product, ठीक है, इसके भी numericals हैं तो वो मैं आपको next lecture में explain करूँगी, that is on Monday. So you have to do first these notes in your fair notebook also, and please be regular in your homework submission, because according to your homework submission you will get your attendance. And most of the students having doubt, that is if their homework is given on 5 November and submission date is 7 November and you are submitting your work on 7 November, the teacher will evaluate your work on 8th morning, because you have the whole day for 7 for submitting your work. The teacher will evaluate your work on 8th morning, then I will update your attendance according to the submission details given by your subject teacher, okay, because homework is given on 5, so I will put your attendance for 5, not for this submission date, because attendance will be marked according to the date whenever the homework is given, not the submission date. Okay class, is it clear now? Because most of the students having doubt that they are submitting work on 9, so they are getting attendance absent there. Why I am getting absent there when I have submitted my work on 9? So please be clear that homework is given
on whatever date, you will get your attendance for that day only, not the submission date. Okay class, so thank you. Please be regular in your homework also. Thank you.